मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی، ان ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے توبہ، ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں۔ یہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ یہی حلال ہے کہ ان کو روک کر رکھے اس وجہ سے کہ لے لے وہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، مگر یہ کہ کوئی سری برائی کر دے ان میں سے، مگر یہ کہ کوئی واضح بے حیائی کا کام کر بیٹھے کوئی، اور ان کے ساتھ گزران کرو اچھے طریقے سے۔ پس اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ممکن ہے یہ کہ تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو، ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہو۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ نساء سن رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 18 اور 19 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان دو آیتوں سے پہلے جو قرآن کریم کا پیغام آپ نے سنا تھا وہ اس بات کو لے کر تھا کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر انہیں تانا مت دو، انہیں برا مت کہو۔ توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو، ان برائیوں کو مٹا دیتے ہیں جو برائیاں اس نے کی ہے۔ پھر یہ بھی کہا تھا کہ توبہ کو جو قبول کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اور یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ توبہ کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ جو کوئی حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، اگر وہ توبہ کر لے فوراً، یا کبھی بھی اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جانتے بھی ہیں اپنے بندے کی توبہ کس نیت سے کر رہا ہے، اور حکمت بھی ہے کہ اپنے بندوں کو گناہ کے باوجود توبہ نہیں کرتے، چھوڑتے بھی رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں۔ اللہ حکیم ہے۔ آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے ہیں،
कुरान करीम बताएगा कि इन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती है। एक तो वो है कि गुनाह करता है और फिर उसके ऊपर इसरार करता है, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करता रहता है, या एक गुनाह किया है और वो अभी तक उस गुनाह को के ऊपर उसने तौबा नहीं की है। अब जब मौत सामने आ गई, जब आखिरत के मनाजिर सब आंखों के सामने नजर आने लगे, फरिश्ते आ रहे हैं और वो मौत रूह निकालने के लिए आ रहे हैं, तो अब कर रहा है कि अब तौबा 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 तौबा, अब इसकी तौबा कबूल नहीं है। यूं लिखा तफसीरों के अंदर कि एक हालत होती है यास की और एक हालत होती है इंसान की बास की। यास की हालत उसे कहते हैं कि मौत से पहले, मरने से पहले आखिरत के जो मनाजिर हैं वो अभी कोई नजर नहीं आया। बीमार तो पड़ा हुआ है, परेशान तो है, लेकिन अभी आखिरत के कोई मंजर इसके सामने नहीं लाया गया, तो इसकी तो तौबा भी कबूल हो जाएगी, और अगर ये काफिर है तो ईमान भी इसका कबूल हो जाएगा। और अगर बास की हालत है, बास की हालत का मतलब यह है कि आखिरत के मनाजिर उसकी आंखों के सामने, जैसे फिरौन था, फिरौन ने जब उसके सामने मौत का फरिश्ता आ गया, फिर कहने लगा आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, के मैं अमी ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। अल्लाह ने कहा कि अब कोई ईमान कबूल नहीं है, उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। तो आखिरत के मनाजिर अगर आंखों के सामने आ गए हैं, देख लिया है, तो ऐसी सूरत में तौबा कबूल नहीं होती और ईमान कबूल नहीं होता। दूसरी है कोई आदमी सारी जिंदगी कुफ्र के ऊपर हो, अब कुफ्र की हालत में अगर वो मरने से पहले आखिरत के मनाजिर सामने है, तो ऐसी सूरत में अब वो तो ईमान कबूल कर रहा है, तो ईमान का मतलब भी तौबा ही होता है। इसी तरीके से कोई आदमी काफिर है और काफिर ने कोई गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, अब उसने उसके ऊपर तौबा कर ली है, अब उसने उस गुनाह के ऊपर तौबा कर ली है काफिर ने, लेकिन मर रहा है कुफ्र की हालत में, तो ऐसी सूरत में उस गुनाह की तौबा जो उसने की थी वो तौबा कोई कबूल नहीं है। तौबा कबूल होने के लिए शर्त है ईमान। ईमान अगर होगा तो आपकी तौबा को कबूल किया जाएगा, ईमान अगर आपके पास नहीं होगा तो तौबा कबूल नहीं की जाएगी। कलाम पाक की यह आयत इसी बात को बतला रही है। तो मालूम यह होता है वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना, और तौबा कबूल नहीं है ऐसे लोगों की, यामलून सय्यिआत, जो करते रहते हैं बुराइयां, गुनाह। एक तो होते एक गुनाह है उसको बार बार कर रहा है, रोजाना कर रहा है, रोजाना कर रहा है, इसको भी कहते हैं कि बार बार करना। एक गुनाह वो है कि उसने गुनाह किया और अभी तक उसके ऊपर तौबा नहीं की, तो इसको भी यही सा समझाया जाएगा कि इस गुनाह पर ये मुसिर है, इसरार कर रहा है, ये शर्मिंदा नहीं है अभी इस गुनाह पर। शर्मिंदगी का नाम ही तौबा है। तो तौबा के कबूल होने के लिए तीन बातों का होना जरूरी है। नंबर एक, उस गुनाह पर शर्मिंदा। नंबर दो, उस गुनाह को छोड़ दे, उस गुनाह को तर्क कर दे, अज़्म मुसम्मम कर ले कि अब नहीं करूंगा। और तीसरी बात यह कि उस गुनाह के बाद फिर अपने आप को रोक कर रखे, उस गुनाह से कभी वो सामने आए तो उससे रुक जाए, अब इंसान बदलना शुरू हो जाएगा। अगर इन तीन चीजों के साथ तौबा कर रहा है तो इंशाअल्लाह वो उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा और बदलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा तो बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों में पड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदला तो एकदम बदल दिया। हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं, फिर भी नहीं बदलते हैं। वो एकदम से अपने आप को बदल लिया करते थे, बदल जाया करते थे। किताबों के अंदर वाकया लिखा कि हजरत फुजाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल है, वो ये कहते हैं कि मैं औरतों का बड़ा दिलदादा था जमाना जाहिलियत में। हर रोज एक नई औरत के पास मेरा जाना होता था, माल दौलत बहुत ज्यादा था,
एक मर्तबा अबू जहल ने ऐलान कर दिया कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाएगा, नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, मैं उसको 100 ऊंट इनाम दूंगा। तो हजरत फुदाला रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने समझा कि मेरे पास माल ज्यादा होगा तो रोजाना और गुनाह करने में मौका मिलेगा और रोजाना नई औरत आएगी। तो मैं लालच में मैंने खंजर उठाया घर से, और खंजर उठा करके मैंने अपने बगल में लगाकर और ऊपर से चादर ओढ़ करके मैं निकल गया। नबी करीम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे और फिर तवाफ किया करते थे। तो ये समझ गया कि मैं जोहर के वक्त पहुंचूंगा और वो तवाफ करेंगे और तवाफ के दौरान मैं अपना काम तमाम कर दूंगा। तो ऐसी सूरत में ये हजरत फुदाला रजी अल्लाह ताला अपने घर से निकलते हैं। अब रास्ते में निकलते हुए उस एक औरत थी जिसके पास रोजाना ये जाया करते थे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उस औरत से मिले और कहा कि आज मैं बहुत सारा माल लेकर आऊंगा, तैयार रहना। औरत ने कहा ठीक है, वो आपकी मर्जी। तो ये वहां पहुंच गए खाना काबा में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, ये भी साथ साथ में बराबर में चल रहे हैं। एक चक्कर हो गया। अब इनकी नीयत ये थी कि जैसे ही मैं इनके पास को पहुंचूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास को पहुंचूंगा, तो मैं अपना खंजर निकाल करके फौरन घोंप दूंगा और इनका काम तमाम कर दूंगा। तो ये तवाफ करते हुए आप वसल्लम के पास को एक मर्तबा गुजरे, हिम्मत नहीं पड़ी। दूसरी चक्कर में फिर गुजरे, हिम्मत नहीं पड़ी। तीसरे चक्कर फिर गुजरा, हिम्मत नहीं पड़ी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी थी कि उनके दुश्मन पर बहुत दूर तक उनका रौब पड़ जाया करता था। ये हमारे नबी की खुसूसी हदीस में भी आपने सुनी होगी कि मेरी अल्लाह ने मदद की है मेरे रौब के जरिए, दुश्मनों पर मेरा रौब। तो हिम्मत नहीं पड़ी। जब छठा चक्कर चल रहा था तो छठे चक्कर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत फुदाला कहते हैं, मेरा कंधा पकड़ लिया और यूं कहने लगे, करते क्यों नहीं जिस इरादे से तुम आए थे, जिस इरादे से तुम आए हो तुम वो काम करते क्यों नहीं है। मेरा कंधा पकड़ गया और कहे कि तेरे पास एक चक्कर बचा हुआ है, तूने अभी तक कुछ नहीं किया। तो हजरत फुदाला रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि मेरा जो कंधा हिलाया वो खंजर जो बगल में लगा हुआ था वो आप वसल्लम के कदमों में पड़ा हुआ है, और खंजर जैसे ही आप वसल्लम के कदमों में गिरा, मैं भी आप वसल्लम के कदमों में गिर गया। और मैंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और कलमा पढ़ने के बाद अब ये सहाबी अपने आप को पूरा बदल दिया। तो आप वसल्लम ने पहले कलमा बाद में पढ़ा, पहले उनके सीने पर, यह भी आया रिवायतों में, पहले उनके सीने पर हाथ फेरा, दिल पर हाथ फेरा, उसके बाद कलमा पढ़ाया। तो यूं कहते हैं कि मैं कलमा पढ़ने के बाद मैं जा रहा था अपने घर। अब वो औरत मुझे देख रही है, अंदर से इशारा कर रही है, जिस औरत को मैंने कहा था कि तैयार रहना, मैं बहुत सारा माल लेकर आऊंगा। अब मैं चला जा रहा हूं, अब मुझे उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैंने अपने आप को, और यूं कहते हैं कि मैं वो जवान था मक्के के अंदर कि मेरे ऊपर औरतें मरती थी, लेकिन जब मैं जा रहा था तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चला, आगे चला, वो फिर दरवाजे पर आ गई, दरवाजे पर आकर के मुझे इशारा कर रही है, बुला रही है, आवाज दे रही है। मैं चला जा रहा हूं। फिर जब मैं चला ही जा रहा हूं, आगे निकल गया, तो फिर मेरे पीछे दौड़ कर आई और फिर कह रही है मुझे पकड़ करके, फुजाला क्या बात हुई, वही तो है तुम जो अभी जा रहे थे, क्या हो गया। तो कहने का मतलब यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उम्मती थे, वो अपने आप को एकदम बदल लिया करते थे। जो उनके गुलाम थे, हम भी उनके गुलाम हैं। आज हमारा हाल क्या है? अगर हमारे पास किसी का लेन देन है, अगर हमारे पास किसी का लेन देन है तो हम क्या कहते हैं? अगर वो कहता है भाई थोड़े थोड़े दूंगा, मैं आपको अदा कर दूंगा, अगर बिरान कर देगा। हमारा हाल तो ये है
کہ آہستہ آہستہ بدل جاؤں گا. ارے میں آپ عشاء کی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے, فجر کی پڑھنے لگوں گا, فجر کی شروع کر دی ہے, ظہر کی پڑھنے لگوں گا, اب تسبیح میں نے جیب میں گیر لی ہے, اب میں روزانہ قرآن پڑھ رہا ہوں, روزانہ ملاقاتوں میں جا رہا ہوں, بدل جاؤں گا آہستہ آہستہ. ہمارا تو یہ حال ہے نا. اور اگر معاملہ آتا ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم آہستہ آہستہ بدلیں گے, اور جب معاملہ ہوتا ہے ہمارا اپنا تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی ایک دم سے دے پیسے, یہ بیان کر نہ دے مجھے, یہ ایسا لین دین نہیں صحیح ہے, ایک دم سے دینے پڑیں گے. ہمارا حال یہ ہے, اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق آہستہ آہستہ بدلنے کا. یہاں تو ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بدلنے کے چکر میں, مسجد میں آنے کے چکر میں قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں. مسجد میں آنے کے بجائے کہ میں آج جاؤں گا, کل جاؤں گا, پرسوں جاؤں گا, اس چکر میں پھر کہاں پہنچ جاتا ہے, وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے. توبہ کا اسے موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو کہ آپ توبہ جب کریں تو توبہ کی مذاق نہ ہو. زبان سے اگر 1000 مرتبہ آپ توبہ توبہ کریں گے, یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کے اندر 3 شرطیں ہیں. اس گناہ پر شرمندہ, اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم, اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی تلافی. اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک 40 سال سے شراب پینے والا آدمی بیان میں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں, اور بیان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت جو ہے انتظار میں رہتے ہیں بندے کی, ہر وقت اس کے انتظار میں رہتے ہیں, آج آ جائے گا, کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا. اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کی ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں. تو وہ آدمی جو شراب 40 سال سے پی رہا تھا, نشے کے اندر تھا, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب تو میرا کوئی بھی انتظار نہیں کرتا, اللہ رب العزت بھی, کیا اللہ رب العزت میرا حقیقت میں انتظار کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا ہاں ضرور تیرے انتظار کرتے ہیں. کہ جی میرا تو انتظار کرنا میری ماں نے چھوڑ دیا ہے, جب روزانہ میں پیتا ہوں تو ماں نے بھی چھوڑ دیا تو روزانہ آتا ہے ایسے ہی, اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. بیوی نے میرا انتظار کرنا چھوڑ دیا, بچوں نے میرا انتظار کرنا چھوڑ دیا, کیا اللہ رب العزت اب تک میرا انتظار کر رہے ہیں؟ میں 40 سال سے پی رہا ہوں, کیا ہاں اب تک تیرا انتظار کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے توبہ کری, اور توبہ کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد بھی جب مسجد پہنچا وہ دوڑ کر کے, اور مسجد جا کر کے اس نے جو اللہ کے سامنے رویا دھویا کہ اللہ اب نہیں کروں گا, تو میرے انتظار میں اب تک ہے. تو یوں لکھا ہے, یوں بیان کرتے علماء کہ مسجد کے ہر دیوار, ہر کونے میں سے آواز آ رہی تھی کہ ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور میں تیرے انتظار میں ہی تھا. اللہ اکبر. تو یہ ہے توبہ, جب آدمی توبہ کے لیے عزم مصمم کے ساتھ, گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اسی کو قرآن کریم بتا رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور توبہ ایسے لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہ پر اصرار کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے نہیں ہے. اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے اوپر شرمندہ اور اللہ سے معافی. تیسری بات یہ کہ اس گناہ سے کم از کم 1 مرتبہ تو رک جائے. پھر اگر جہالت کی وجہ سے ہو جائے بات الگ ہے, لیکن 1 مرتبہ رک جانا یہ عزم مصمم کو یہ پورا کر دیتا ہے کہ جو ارادہ کیا تھا ہم نے نہیں کروں گا, 1 مرتبہ اس گناہ سے رکنا یہ اس کو پورا کر دیتا ہے. اگر پھر جہالت کی وجہ سے, حماقت کی, بیوقوفی کی وجہ سے گناہ ہو جائے, پھر توبہ کر لیجیے آپ, پھر اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں گے. لیکن اپنے آپ کو پورا بدلنے کا ارادہ ہو. آگے فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک کہ جب سامنے آ جاتی ہے ان میں سے کسی کو موت, قال انی تبت الان, تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اس کی توبہ قبول نہیں ہے. جب آخرت کے مناظر سامنے آ گئے, موت سامنے کھڑی ہو گئی آ کر کے, اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں, تو اب کہہ رہا ہے توبہ کرتا ہوں, اب توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے اگر 1 گھڑی پہلے بھی توبہ کر لیتا توبہ قبول ہو جاتی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہیں ہے توبہ قبول ایسے لوگوں کی
जो मर जाते हैं कुफ्र की हालत में, जिन लोगों ने अपने गुनाह के ऊपर तौबा की और मर रहे हो कुफ्र की हालत में, उनकी तौबा का कोई एतबार नहीं है, उनकी तौबा कबूल नहीं है। तौबा कबूल उसी की होगी जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही लोग हैं कि हमने तैयार कर रखा है उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनकी तौबा कबूल नहीं होती है, जो गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं और गुनाहों की हालत में ही दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो गुनाह पर इसरार ना करें, नंबर एक गुनाह पर शर्मिंदा। और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अहयाउल उलूम में कि गुनाह के इकदाम के 3 दर्जे हैं। नंबर एक तो वो कि जिनसे गुनाह होते ही नहीं है, जिनसे गुनाह होते ही नहीं है, वो खुसूसियत है फरिश्तों की और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, इनसे गुनाह होते नहीं है। दूसरी जो है हालत यह है कि गुनाह होते हैं और गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी नहीं होती और गुनाह पर मुसिर रहते हैं, बार बार गुनाह करते रहते हैं, यह खुसूसियत शैतान की है। और तीसरी है बनी आदम, कि गुनाह हो जाते हैं फौरन तौबा करते हैं, यह बनी आदम की खुसूसियत है। इससे मालूम हुआ इन तीनों बातों से कि जो आदमी गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं और तौबा नहीं करते हैं, ऐसी सूरत में वो शैतान है। इससे मालूम हुआ कि जो गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, तौबा नहीं करते हैं, ये शैतान है, उस खुसूसियत में दाखिल हो गए हैं। जो गुनाह करते हैं और गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से माफी मांग लेते हैं और तौबा करने के बाद अपने अमल को अच्छा कर लेते हैं। उमन आमना व आमिला अमलन सालिहन, उमन ताबा व आमिला अमलन सालिहन, तौबा करते हैं फिर अमल साले शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना महबूब बना लेते हैं, अपना महबूब बना लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए गुनाह हो जाए उस पर शर्मिंदा, उसे छोड़ देना। तीसरे, नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज पढ़नी शुरू कर दे, रोजा नहीं रखता है तो रोजा रखना शुरू कर दे। इसी तरीके से जो भी काम है अल्लाह के हुक्म है, उन हुक्मों को अदा करने का नाम भी तौबा है, कि इसने अपने पिछली सब जिंदगी को छोड़ करके अब ये जमात में लग गया, अब ये नमाज पढ़ता है, वो कुरान पढ़ता है, मुलाकात करता है, तो अब ये तौबा इसकी कबूल हो रही है। और इसी तरीके से एक शर्त और है तौबा के अंदर, जो है हुकूकुल इबाद, किसी की चुगली की हो, किसी को गाली दी हो, किसी का माल खाया हो, ये भी तौबा कबूल नहीं होती है। ये भी बंदे से माफ करानी पड़ेगी, उसके बाद तौबा कबूल होगी। इसकी किसी को गाली दी हो, किसी को चुगली की हो, किसी का माल खाया हो और किसी के ऊपर जुल्म किया हो, किसी भी एतबार से बंदे के हुकूक हमारे जिम्मे थे और हमने उसको अदा नहीं किए या हमने किसी के साथ जुल्म ज्यादती की, ये तौबा भी कबूल नहीं होती है जब तक बंदे से माफ ना करा ले। चलो इंशाअल्लाह एक ही आयत की तफसीर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की